اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ویلکم ٹو سمویدا کلاس۔ میں عائشہ سلطانہ معاون معلمہ سرکاری اردو ہائی اسکول سالگدلہ تعلقہ سندھنور ضلع رائچور سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں آپ کے سامنے دہم جماعت کے علم ریاضی کے عنوان دائرہ چوتھے سبق کے تیسرے یونٹ جو کہ ہمارا آخری یونٹ ہے اس کو پیش کرنے جا رہی ہوں۔ یہ ہماری درسی کتاب ہے، حصہ اول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دہم جماعت کے چوتھے سبق کے تیسرے یونٹ میں آپ تمام طلبہ کا استقبال کرتی ہوں۔ گزشتہ کلاسز میں نے آپ سے چند عملی سرگرمیاں کرنے کے لیے کہا تھا۔ عملی کام کیا دیا تھا میں نے؟ مختلف نصف قطر کے دائرے بنائیے، دائرے کے کسی بیرونی نقطے سے مماس بنائیے۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح بیرونی نقطے سے مماسوں کو بنایا جاتا ہے۔ مماس بنانے کے بعد مماسوں کی لمبائی معلوم کرنے کے لیے بھی کہا تھا۔ کوئی مخصوص پیمائش نہیں دی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ نے یہ عملی کام کیا ہوگا۔ آئیے اب اس ویڈیو کلپ کو دیکھتے ہیں۔ اب اس ویڈیو کلپ کو دیکھیے۔ اے بی ایک قطع خط ہے۔ اے کو مرکز مان کر ایک دائرہ بناتے ہیں۔ بی کو بیرونی نقطہ مانتے ہوئے پرکار میں قطع خط اے بی کا آدھے سے زیادہ فاصلہ لیتے ہوئے نقاط اے اور بی سے قوس لگا کر اس کی تنصیف کرتے ہیں۔ نقطہ یم کو مرکز مان کر پرکار کی مدد سے ایک دائرہ بناتے ہیں جو نقاط ین اور او پر خطا کرتا ہے۔ اب بیرونی نقطہ بی سے ین بی اور او بی کو جوڑتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حاصل ہونے والے مماس اور مشترکہ خط اے کے ساتھ بننے والے دو زاویوں کے مماس کے درمیان کی زاویے کی پیمائش مساوی ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ ین بی اور او بی مماس اور مشترکہ خط اے بی کے درمیان بننے والے زاویے مساوی ہیں اور ان کی پیمائش مساوی ہے۔ اگر میں خط اے بی کو بڑھاتی ہوں یا اس کی پیمائش کو کم کرتی ہوں تب بھی ہم کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ ان کی پیمائش کو کم یا زیادہ کرنے کے باوجود مماس اور مشترکہ خط اے بی سے بننے والے زاویوں کی پیمائش مساوی ہوتی ہے۔ اس شکل کے ذریعے ہم نے اس ویڈیو میں جانا۔ ٹھیک ہے بچوں؟ چلیے اب ہم مسئلہ نمبر 4.2 کو ثابت کریں گے۔ دائرے کے کسی باہری نقطے سے کھینچے جانے والے مماسوں کی لمبائیاں برابر ہوتی ہیں۔ اس شکل میں دیکھیے، او دائرے کا مرکز ہے، پی بیرونی نقطہ ہے، تو مفروضے میں کیا دیا گیا ہے؟ او دائرے کا مرکز ہے، پی دائرے کے باہر کا ایک نقطہ ہے، پی کیو اور پی آر دائرے کے خطوط مماس ہیں۔ مطلوب ثابت کیا کرنا ہے ہمیں؟ پی کیو مساوی ہے پی آر۔ عمل او پی او کیو اور او آر کو جوڑیے۔ ثبوت یہ بہت ہی معنی ہوتے ہیں، اس کے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ غور کیجئے، مثلث او کیو پی یہ مثلث اور مثلث او آر پی میں زاویہ او کیو پی اور زاویہ او آر پی 90 درجے کے ہیں، کیونکہ مماس پر اگر نصف قطر عمود ہے تو ان کے درمیان بننے والا زاویہ 90 درجے کا ہوتا ہے۔ ثبوت یہ بہت ہی معنی رکھتا ہے مسئلے کو حل کرنے میں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو، دو مثلثات بن رہے ہیں یہاں پر، او کیو پی اور او آر پی۔ دو مثلثات میں زاویہ
ओ क्यू पी मसावी है जाविया ओ आर पी 90 दर्जे का है, क्योंकि निस्फ कुतर और मुमास के दरमियान बनने वाला जाविया 90 दर्जे का होता है। ये हमने पहले से जान रखा है। ओपी मसावी है ओपी, ये दो मुसल्लसात का मुश्तरक वितर है। ओ क्यू और ओ आर एक ही दायरे के दो निस्फ कुतर हैं। मुसल्लस ओ क्यू पी मुतमासिल है मुसल्लस ओ आर पी के। ये दोनों मुसल्लसात मुतमासिल हैं RHS उसूल के तहत। अब पी क्यू मसावी है पी आर, पी क्यू मसावी है पी आर, ये CPCT उसूल के तहत। इससे हमने ये साबित किया कि दायरे के बैरूनी नुक्ते से खींचे जाने वाले मुमासों की लंबाइयां मसावी होती हैं। ये था हमारा मसला नंबर 2 जो इम्तिहान में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारी दरसी किताब की मश्क नंबर 4.2 को हल करते हैं, जिसमें पहला सवाल है एक नुक्ता Q से दायरे के मुमास की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और मरकज से Q का फासला 25 सेंटीमीटर है। दायरे का निस्फ कुतर की लंबाई क्या होगी ये हमें मालूम करना है और यहाँ पर 4 मुख्तलिफ ऑप्शंस भी दिए गए हैं। अब शक्ल की तरफ देखिए। OP दायरे का निस्फ कुतर है, PQ ममास है। ममास और निस्फ कुतर के दरमियान बनने वाला जाविया 90 दर्जे का होता है। ये हम सीख चुके हैं। यहाँ पर हमें 2 जिलों की, इस मुसल्लस में 2 जिलों की पैमाइश दी गई है। हमें OP की लंबाई हमें मालूम करना है। मुसल्लस OPQ में OP उमूद है PQ पर और जाविया OPQ 90 दर्जे का है। हम जानते हैं फीसागोरस के मसले के तहत OQ की दूसरी मसावी होती है OP की दूसरी जमा PQ की दूसरी, यानी वितर पर का मुरब्बा मसावी होता है मुसल्लस के बाकी 2 जिलों के मुरब्बे के मजमुए के बराबर। तो यहाँ पर OQ की पैमाइश 25 सेंटीमीटर है, OP की पैमाइश हमें मालूम करना है और PQ की पैमाइश 24 सेंटीमीटर दी गई है। तो OP को मसावात के एक तरफ ले लेते हैं। यहाँ पर OQ की पैमाइश 25 है, इसको हम मुरब्बा में लेते हैं और PQ को भी उसकी पैमाइश 24 सेंटीमीटर है। जब मसावात के एक तरफ ले लिया जाता है तो उसकी अलामत बदल जाती है, मुस्बत मनफी में तब्दील हो जाता है। जब हम इनके मुरब्बों को मालूम करते हैं तो 25 का मुरब्बा 625 और 24 का मुरब्बा क्या होगा 576। जब हम 625 में से 576 को मनफी करते हैं तो हमें क्या हासिल होगा 49 हासिल होगा। अगर हम OP की जो मुरब्बा है उसको निकालते हैं तो हमें OP की मसावी हमें क्या हासिल होता है 49 के का मुरब्बा है 7 का 7 सत्ते 49। तो हमें क्या हासिल होगा PO या OP मसावी है 7 सेंटीमीटर हासिल होगा, जो कि दायरे का निस्फ कुतर है। अब आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, शक्ल में अगर TP और TQ दायरे के 2 मुमास हैं जिसका मरकज O है, जबकि जाविया POQ 110 दर्जे दिया गया है। बच्चों ये आपको मालूम होना चाहिए, जिस जाविये की पैमाइश की जाती है उसको हम लिखते वक्त बीच में लिखते हैं, यानी POQ, O की पैमाइश 110 दर्जे है। तो अब हम यहाँ पर भी हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर शक्ल में आप देख रहे हो OP उमूद है किस पर TP पर और OQ उमूद है TQ पर, जिसमें
OP और OQ निस्फ उत्तर हैं, TP और TQ ममास हैं। अब एक चीज हमें मालूम है कि ममास और निस्फ उत्तर के दरमियान बनने वाले जाविये की पैमाइश 90 दर्जे होती है, इसीलिए हमने लिखा है TPO मसावी है TQO 90 दर्जे। अब POQ जमा PTQ मसावी है 180 दर्जे, क्योंकि 4 जिले वाली जो ये शक्ल बन रही है इनके मुकाबिल के जावियों का मजमुआ क्या होता है, 180 दर्जे होता है। हम यूं ही कह सकते थे कि 110 दर्जे यहाँ पर है तो यहाँ पर 70 दर्जे होगा, लेकिन हम मसावत के जरिए जब हल करते हैं तब भी हमें यही जवाब हासिल होता है। PTQ मसावी है 180 दर्जे मनफी 110 दर्जे, तो जवाब हमारा PTQ है, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। अगर एक नुक्ता P से दायरा जिसका मरकज O है पर दो मुमास PA और PB इस तरह हैं कि एक दूसरे के साथ 80 दर्जे का जाविया बनाते हैं, तब जाविया POA यहाँ की पैमाइश क्या है हमें मालूम करना है। तो हल देखिए, मुसल्लस OAP में जाविया POA जमा OPA जमा PAO मसावी है 180 दर्जे, यानी एक मुसल्लस में एक मुसल्लस के 3 जावियों का मजमुआ कितना होता है, 180 दर्जे। बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हमें यहाँ पर POA जाविये की पैमाइश मालूम करना है। OPA 40 दर्जे है, ये 80 दर्जे है, तो इसका आधा यहाँ क्या होगा, 40 होगा, और जाविया PAO यहाँ पर जो जाविया बन रहा है वो 90 दर्जे का होगा। तो क्योंकि ये ममास और निस्फ उत्तर के दरमियान बनने वाला जाविया 90 दर्जे का होता है, ये आपको अच्छी तरह से पता है ना। तो अब हम जब PAO जाविये की पैमाइश मालूम करते हैं तो जब 40 और 90 को जमा किया जाता है तो ये 130 होगा। अगर हम इसको मसावत के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो 180 दर्जे मनफी 130, तो हमें जवाब जो हासिल होगा वो 50 दर्जे, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। अब आगे बढ़ते हैं। दायरे के मरकज से 5 सेंटीमीटर फासले पर मौजूद नुक्ता ए से मुमास की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। दायरे का निस्फ उत्तर मालूम कीजिए। हमें OB की पैमाइश मालूम करना है। जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हो, OB खत AB पर उमूद है, AB ममास है। हमें OB की पैमाइश मालूम करना है। जैसा कि इस शक्ल में दिया गया है, OA की पैमाइश 5 सेंटीमीटर है और AB की पैमाइश 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो जाविया 90 दर्जे का बनने की वजह से ये मुसल्लस कायमुतुज जाविया मुसल्लस है। कायमुतुज जाविया मुसल्लस अगर बन रहा है, यानी यहाँ पर फीसागुरस का मसला अप्लाई होता है। फीसागुरस के मसले की मदद से हम जब मसावत को हल करते हैं तो OA की दूसरी मसावी है OB की दूसरी जमा AB की दूसरी। यहाँ पर OA की दूसरी 5 है, इसका मुरब्बा लेते हैं। OB की पैमाइश हमें मालूम करना है और AB 4 दिया गया है। जब इसका हम मुरब्बा लेते हैं तो क्या हासिल होता है, यहाँ पर 25 मसावी है OB की दूसरी जमा 16। अब हम OB को एक तरफ कर लेते हैं, 25 एक तरफ रखते हुए मसावत के उस तरफ जब हम 16 को लाते हैं तो ये मुस्बत का मनफी में तब्दील हो जाता है। तो OB की दूसरी मसावी है, क्या होगा, 25 मनफी 16 करने से हमें 9 हासिल होता है। जब हम इसकी हुवत को निकाल देते हैं, दुगनी को निकाल देते हैं, तो OB जजर में होगा। तो 9 जजर किसका है, 3 का। जजरुल मुरब्बा 9 है, तो OB हमारा क्या हो गया, निस्फ उत्तर की पैमाइश हमें हासिल हो गई है जो कि 3 सेंटीमीटर है। इस तरह अब हम आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5वां सवाल है हमारा, दिए गए O मरकज के दायरे में ACB ये एक ममास है, AE एक ममास है, BD
ये तीनों खुतूत मुमास हैं, जिसमें एक खुतूत मुमास ए बी और ए ई की पैमाइश 12 और 3 सेंटीमीटर दी गई है, तो हमें बी डी की लंबाई मालूम करना है। हल देखिए, एक चीज हमें मालूम है कि बैरूनी नुक्ते से खींचे जाने वाले दो मुमासों की लंबाई मसावी होती है। तो यहाँ पर ए ई मसावी किसके होगा? ए सी के, और सी बी मसावी का, यहाँ पर बैरूनी नुक्ता बी है तो बी सी और बी डी की पैमाइश मसावी होगी। बैरूनी नुक्ते से मुमासों की पैमाइश मसावी होती है। अब यहाँ पर हमें ए बी मसावी है, खत ए बी, इसमें दो ममास कौन से हैं? ए सी और सी बी है। जब हम इनको जमा करते हैं तो ये मसावत बनती है। अब हमें मालूम सी बी की पैमाइश करना है, इसीलिए ए बी मसावत एक तरफ रखते हुए ए सी को मसावत के दूसरी तरफ लाते हैं तो ये मनफी हो जाता है। सी बी मसावी है 12 मनफी 3, तो सी बी मसावी है 12 में से 3 जाने पर 9 हासिल होता है। यानी सी बी, अगर हमारा सी बी 9 सेंटीमीटर है तो बी डी की पैमाइश क्या होगी? ये दोनों मसावी हैं, तो बी डी की पैमाइश क्या होगी? ये भी 9 सेंटीमीटर है, इसलिए देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छठा सवाल हमारा, मुसल्लस ए बी सी में जाविया बी मसावी है 50 दर्जे। यहाँ पर जो जाविया दिया गया है वो 50 दर्जे हैं। दायरे का मरकज सी है, ए बी दायरे का ममास है, तो सी ए बी और ए सी बी की पैमाइश हमें मालूम करना है। जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हो, ए बी ममास है, सी बी ए सी जो इस पर उमूद है और निस्फ खुतर है, तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं कि मुसल्लस के 3 जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। तो इस लिहाज से जाविया सी जमा जाविया ए जमा जाविया बी मसावी है 180 दर्जे होगा। अब यहाँ पर हमें जाविया बी की पैमाइश दी गई है जो कि 50 दर्जे है, और जाविया ए क्योंकि ये कायमुद्दुज जाविया है, क्यों? क्योंकि मुमास और निस्फ खुतर के दरमियान बनने वाला जाविया 90 दर्जे का होता है, तो इसलिए हमें सिर्फ जाविया सी की पैमाइश मालूम करना है। तो क्या होगा? सी मसावी है, इन दोनों को जब जमा किया जाता है, इन दोनों जावियों को, तो 90 जमा 50 140 होगा। अब जब सी को एक तरफ लेते हुए 180 में से 140 को जब निकाला जाएगा तो सी मसावी है 180 मनफी 140 होगा, यानी जाविया सी की पैमाइश क्या होगी? 40 दर्जे होगी। समझ में आया आपको ये सवाल? चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें सवाल की तरफ। 4 जिली एक मुतदायर जू अरबतुल अजला है, ए बी सी डी। अगले सवाल 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ए बी सी डी मुतदायर जू अरबतुल अजला है, जिसमें जाविया ए बी सी 70 दर्जे दिया हुआ है। तब हमें जाविया ए डी सी की पैमाइश मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक शक्ल में ये मुतदायर जू अरबतुल अजला बन रहा है। हमें मालूम है, हमने पढ़ा है पिछले यूनिट में कि मुतदायर जू अरबतुल अजला के मुकाबिल के जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। अब इसको हम मसावत के जरिए हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जाविया ए बी सी जमा ए बी सी की जमा जाविया ए डी सी कितना होगा? 180 दर्जे होगा। यहाँ पर हमें जाविया ए बी सी की पैमाइश 70 दर्जे दी गई है, तो हमें जाविया ए डी सी की पैमाइश मालूम करना है। तो इन दो मुकाबिल के जावियों का मजमुआ 180 है, ये हमें पता है, इसीलिए ए डी सी मसावी है 180 दर्जे मनफी 70 दर्जे। तो जब हम ए डी सी जाविये की पैमाइश मालूम करने जाते हैं तो हमें पता चलता है जब 180 दर्जे में से 70 को नफी किया जाता है तो जवाब हमारा 110 दर्जे हासिल होता है। समझ में आया आपको? फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। 8वां सवाल, एक 4 जिली ए बी सी डी इस तरह बनाया गया है कि इसके हर जिले के बनाया गया है, इसका हर जिला इसके अंदर मौजूद 2 दायरों को छूकर गुजरता है।
موجود दायरे को छूकर गुजरता है। मक्खियाँ। चलिए 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक 4 ज़िली ABCD इस तरह बनाया गया है कि इसका हर जिला इसके अंदर मौजूद दायरे को छूकर गुजरता है। साबित कीजिए कि AB जमा CD मसावी है AD जमा BC। हल करते हैं और इसकी शक्ल को देखिए। यहाँ पर बैरूनी नुक्ता D है, यहाँ पर C है, यहाँ पर B है और यहाँ पर A है। बैरूनी नुक्ते से ममास बन रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? देखिए, DR मसावी है DS के, यानी बाहरी नुक्ता D से जो नुकात बन रहे हैं उनकी पैमाइश मसावी है, उसको मसावत नंबर 1 कहते हैं। फिर RC इस नुक्ते से बाहरी नुक्ता C से RC मसावी है CQ लेते हैं और इसको मसावत नंबर 2 नाम देते हैं। फिर नुक्ता B से BP मसावी है BQ लेते हैं। उसके बाद नुक्ता A को देखते हैं, यहाँ पर AP मसावी है AS, यानी बैरूनी नुक्ते से बनने वाले जावियों की पैमाइश मसावी होती है। इस उसूल से हमने इसको लिखा है, इन मसावत को। अब हम क्या करते हैं? मसावत 1, 2, 3 और 4 को जमा करते हैं। इसके दाएं और बाएं जानिब के अरकान को अलग अलग करके लिखते हैं, तो हमें जो मसावत हासिल होगी DR जमा CR, इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं। DR जमा CR एक खत हो जाता है ये। BP जमा AP जमा AP ये एक खत बन जाता है, इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब मसावी है DS और AS, इसको एक ब्रैकेट में जमा कर लेते हैं। CQ जमा BQ ये एक खत है, तो इसको एक ब्रैकेट में जमा करते हैं। तो जब इनको एक किया जाता है, यानी DR जमा CR क्या होगा? DC हो जाएगा। उसके बाद BP और AP वो क्या होगा? AB बन जाएगा, उसको हमने यहाँ लिखा। अब अगली मसावी है, यहाँ पर DS जमा AS ये एक खत हो जाएगा AD। उसी तरह से CQ जमा BQ ये एक खत है, उसको जब देखते हैं तो वो BC होगा। यही हमें साबित करना था। इस तरह ये सवाल भी हमने हल कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं 9वें सवाल की तरफ। दी गई शक्ल में PQ की लंबाई मालूम कीजिए। तो आप इस शक्ल को देखिए, यहाँ पर बैरूनी नुक्ता P है और यहाँ पर Q है। यहाँ पर PA की लंबाई 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पर QC की लंबाई 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमें क्या मालूम करना है? PQ की लंबाई, इसकी लंबाई मालूम करना है, इस मुमास की लंबाई हमें मालूम करना है। तो अब मसावत में लिखते हैं हम इसको। PQ मसावी है PB जमा BQ। अब PQ को मालूम करना है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर AP की लंबाई 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पर QC की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो हमें मालूम क्या करना था? PQ की लंबाई मालूम करना था। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है BQ। तो हम ये कह सकते हैं कि बैरूनी नुक्ता Q होने की वजह से CQ की लंबाई अगर 4 सेंटीमीटर है तो BQ की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर होगी। इस तरह से BQ हमने 4 सेंटीमीटर लिया। तो कुल PQ की लंबाई मालूम किया गया कि यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर होगा और ये इसके मसावी 4 सेंटीमीटर होगा। लिहाजा PQ की लंबाई 6 सेंटीमीटर होती है। इसको हमने हल किया। तो मैंने तुम्हें मश्क हल कराए हैं, मश्क है, चंद सवालात भी हल कराए हैं। आप बाकी सवालात को हल करें। कुछ मुश्किल हो रही है तो अपने स्कूल की मौलिमा से शुबा दूर कर लें। अब तक हमने क्या क्या सीखा है इस पर एक नजर डालते हैं। दायरे के अरकान मरकज, निस्फुतर, खुतर, वितर, मुहित, हौस, खित्ता, सेक्टर, खाते खत, इन सबको हमने अच्छे से जान लिया है। अब
دائرے کے تعلق سے ہم نے اہم نتائج کو بھی جاننا ہے۔ کیا دائرے کے مرکز سے وتر پر کھینچا گیا عمود وتر کی تنصیف کرتا ہے، یہ ہم نے جانا۔ نصف دائرے میں بننے والے زاویے قائمہ ہوتے ہیں، یہ بھی ہم نے جانا۔ خط مماس میں اس کے بارے میں بھی ہم نے جانا۔ مماس سے متعلق اہم نتائج کے بارے میں بھی ہم نے جانکاری حاصل کی۔ اس سبق کے مشق میں موجود کئی سوالات کو حل کیے، ساتھ ہی ساتھ مسئلہ نمبر 4.1 اور 4.2 کو بھی حل کیا۔ امید کرتی ہوں آپ تمام طلبہ کو یہ سب سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ اس سے پہلے کے بھی ویڈیوز کو دوہرا کر دیکھیے۔ اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے تو اپنے اسکول کی معلمہ سے معلوم کیجیے۔ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اس وعدے کے ساتھ۔ اللہ حافظ، شکریہ۔